गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँ, तो ताकि मेरी भी फ्लुएंसी अच्छी रहे, मैं भी मन की बात कहती कर सकूँ अच्छे से, और जो मेरे भाई हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। So right from the beginning of my career, I started working with the farmers since 1987 when I completed my PhD and I wanted to work for the society. So fortunately I came to Wardha from Bhopal and I worked under Dr. Tarak Kate in Center of Science and Research Dattapur, and from there I took up the subject of biodegradation of organic materials with special reference to fungi. Means I have developed a method of composting during my PhD, and after completing my PhD I thought let me transfer this technology to the farmers because I wanted to serve the society. And I was very happy that I have invented something very great and it will be of lot of help to the people, and I may bring a revolution in the field of farming and so on. So I was very full of enthusiasm, and when I went to the farmers, ultimately I realized that I know nothing and they know more than what I had learned during my PhD. So since then, means since 1992 till today, I am struggling to work with the farmers and trying to convince them maybe what is right for them or something of that sort. As we all have discussed that soil is a complex, very complex organism. It's a combination of micro and macroorganisms, so I am not going to detail. Chemical fertilizer practice, we all know the disadvantages, so I am not going to detail. But I have realized, and we all have realized, even the farmers have realized that due to the intensive use of chemical fertilizer, their soil microflora has gone down. वो उतना समझते हैं कि मिट्टी कड़क हो गई है, पत्थर की तरह हो गई है, उसमें जीवन नहीं रहा। ये बात अभी सभी किसान समझते हैं। So and there are various technologies. Means since I started my career, I have been struggling to train farmers on all these technologies: vermicomposting, FIM, NADAP composting, Sanjeevak, Amrit Pani, Amrit Mitti, crop rotation, mixed cropping. All these technologies I have been a major trainer to train the farmers to adopt all these technologies. And at the end of the day, I could realize that only 1 or 2% farmers adopted after the training. And it was so intensive that we had done the exposure visits. We brought good farmers to the new farmers to share their experiences. मतलब किसानों द्वारा ही किसानों को ट्रेनिंग दिया। ऐसा भी नहीं कि मैं कह रही हूँ। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जो अच्छे सक्सेसफुल किसान हैं उनकी मदद से जो नए किसान हैं उनको ट्रेनिंग देना, और आज ट्रेनिंग दिया तो कल जाके खेत आप उनके खेत भी देख सकते हैं। इस तरह का एक एक गांव में 2-2 महीने 3-3 महीने इंटेंसिव ट्रेनिंग भी किया। उसके बाद उनके पीछे भी पड़ी, मतलब मेरे जैसा पीछे पड़ने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा जो ट्रेनिंग देने के बाद में साल भर तक डंडा लेके उनके पीछे पड़ती रही कि आपने क्यों नहीं किया, आप क्यों नहीं करते, आपको करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन तो भी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो उसके बाद में फिर हमने थोड़ी सी हमने जो सीखा हमने उसको लर्न किया, थोड़ा सा हम पीछे हटे और हमने ये जानना चाहा कि फार्मर्स क्या चाहते हैं। तो उसके बाद मुझे ये कुछ चीज़ें समझ में आई कि एक तो उनके अंदर डर है कि वी विल लूज और प्रोडक्टिविटी, हमारा जो खेती है उस जो केमिकल फर्टिलाइज़र के बिना हमारा खेती होता नहीं है। दे हैव यूज्ड अ वेरी गुड वर्ड that we are addicted towards drugs or liquor. Our soil is addicted. हमें तो आदत पड़ गई है, we can't do without it. Like the people say कि हम सुबह चाय नहीं पियेंगे तो हमारा दिन नहीं निकलता, ऐसे हमें मन में लगता है कि यदि हम नहीं डालेंगे खेत में केमिकल फर्टिलाइजर तो शायद खेती नहीं होगी। Means our soil can't do without it. That is what is the deep feeling in them. Then lack of organic resources, of course, because there is no cattle, very few cattle are there, तो ऑर्गेनिक रिसोर्सेज नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है किसानों में कि दे फील दैट काउ डंग इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दे डोंट फील दैट द बायोमास इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। गोबर है तो खाद है, गोबर नहीं है तो कुछ नहीं, कचरे को आग लगा देते हैं।
So I had to struggle to convince them that no, not manure. Manure, cow dung is only microbial inoculum. You have to use all the organic biomass to make composting. So that was one thing which I had to convince the people. लेबर क्राइसिस ऑफ कोर्स आज दोपहर में बात हो रही थी. लेबर क्राइसिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अभी तो गांव की स्थिति है कि देयर इज नो एजुकेशन फैसिलिटीज. देयर आर ओनली प्राइमरी स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1 to class 4. So most of the farmers which are a bit well to do, they are migrating to the nearby city urban areas for the education of the children, and they are doing up down. And the students who didn't get the chance to study after 10th are migrating to the cities to take any silly job. होटल में बैरे भी बन जाएंगे, झाड़ू भी लगाने का काम करें, whatever they get, because they feel it is a prestige and they need a cash money. And even the parents, the farmers also doesn't want that my son should do farming. जैसे अभी आज सुबह उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो खेती नहीं करेगा, तो किसान भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा खेती करे, क्योंकि उसको लगता है कि इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी झोपड़ी है उसका कच्चा स्लैब पक्का भी नहीं बना और मेरे जो मवेशी है वो भी जो सब बेचना पड़ रहा है, तो खेती में क्या फ़ायदा है. तो किसान भी नहीं चाहते. तो इसलिए भी एक प्रॉब्लम है कि माइग्रेशन ऑफ लेबर अभी हुआ है, तो लोग कैसे खेती करें, ये बड़ी प्रॉब्लम है. उसके बाद में इरिगेशन फैसिलिटीज़ के बारे में तो मैंने बताया ही आपको. क्रॉप फेलियर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ये भी अभी पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि कभी ज़्यादा बारिश, कभी कम बारिश, अनटाइमली रेन, लेट रेन, ये सब हो रहा है कि द क्लाइमेट हैज़ बिकम सो अनप्रेडिक्टेड. और पिछले 30 सालों में क्लाइमेट बदल गया, लेकिन कम से कम महाराष्ट्र में कह सकती हूँ कि जो क्रॉपिंग पैटर्न था विच वॉज रूटीन क्रॉपिंग पैटर्न, सोयाबीन, कॉटन, तूर, ये बदला नहीं है. फार्मर्स हैव नॉट गॉन आउट ऑफ इट. तो ये इनका सोइंग पीरियड के समय बारिश नहीं होती है, जब थोड़ा जर्मिनेशन होता है तब ज़्यादा बारिश हो जाती है. तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्रॉप फेलियर्स हैं. तभी भी इसलिए लोग चाह रहे हैं कि अभी जो कर रहे हैं वही नहीं कर पा रहे ठीक से, तो नया क्या करेंगे. दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस. उसके बाद में वाइल्ड एनिमल्स का हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है. मीन्स वी हैड अ वेरी गुड मॉडल. One institute has developed Chetna Vikas of growing 32 types of food crops in 2.5 acres of a land, and she was successful in replicating it to 150 farmers. But when I last year met her, she said कि no, I am very sorry, we had multiplied it to 150 farmers, but farmers have discontinued it because of the wild animal problem. क्योंकि क्या होता है कि ये साल भर आपको खेत में कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, तो all the wild animals will get attracted. The whole the year you have jowar, you have soybean, you have other food crops, you have vegetables, you have maize. So all the wild animals, they know what is there, where to go to eat, and they will not eat. They will destroy the whole farm. And the neighboring farmer used to fight with this farmer who is practicing a biodiversity farming कि ये बंद करो, हमारे वहाँ खेत खराब हो रहा है. Just to discontinue, they compelled him to discontinue his good farming practices, organic farming, biodiversity farming, because their field also got to destroyed. And somebody said it is not a single farmer, it is a village, a community whole which makes the farming successful. Because जब लोग वो जागरण करने जाते हैं ना, they all go to stay in the night on the farm to guard. They all go together. पूरे खेत के किसान पूरे रात जागरण करते हैं अपने खेत की फसल को बचाने के लिए. तो वो यदि एक किसान मना कर दूसरा किसान उसको नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसके साथ में जीना है, उसके साथ में मरना है. दैट इज़ वाई दे सेड कि यदि 150 फार्मर में से सिर्फ 15 फार्मर कंटिन्यू किए, बाकी ने डिसकंटिन्यू किया. ऑल्दो इट वॉज अ टेक्निकली वेरी गुड प्रैक्टिस एंड इट वॉज मेंट फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ द सॉइल. एंड देयर आर मैनी अदर रीजन्स ऑल्सो कि हमारे बच्चे नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. सो द टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा मैं सिर्फ बताना चाहूँगी कि आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद अ फ्यू टेक्नोलॉजीज विच आर अ बिट यूज़र फ्रेंडली, जिसमें बायोगैस है फ्रॉम द फूड वेस्ट. आरती बायोगैस प्लांट है. समबडी वाज आस्किंग मी इन द आफ्टरनून कि हम शहर के लोग गांव के लिए क्या कर सकते हैं. सो आई एम गिविंग सम अल्टरनेटिव्स कि क्या कर सकते हैं. ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ है जो मैंने यूज़ किया है. आपने देखा होगा कि शादी के बाद या कोई भी सेरेमनी के बाद में बहुत सारा फूड वेस्ट वो मंगल कार्यालय में या लॉन में फेंक देते हैं बाहर, क्योंकि लोग रोज़ यदि दिन में 2 बार सेरेमनी हो रही तो कहाँ गरीब लोगों को ढूंढने जाएंगे.
और वो सारा जो है वो जानवर खाते हैं, गाय खाती है, बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो आई हैव ट्राइड अ टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट दिस वेस्ट इनटू बायोगैस। तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होता है। तो पहले उसको पानी में डंप किया, प्लास्टिक निकाल के बाजू में किया, उसके बाद में उसको स्टर किया, उसमें काउडंग सॉल्यूशन ऐड किया। देन व्हेन इट बिकेम अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, I transfer it to the biogas. This is one of the technology. Another is same thing I have done in a small Syntex tank. It is also a well-known technology of Aarti biogas plant. Aarti biogas plant. It is developed by Aarti Institute Pune. So in the Syntex tank also you can do it in a small scale. So whatever food is generated in a hostel or in a mess, you can collect all that waste and just dissolve it in a cow dung slurry, and then it is stirred well, and every day you can filter it and feed it 1 to 2 liter of that liquid slurry with the food waste is used. Okay, this is I'm not going to detail the technologies now. Then this is a technology for composting of flower waste from the temples. This is a technology for making kitchen garden in your house using your own kitchen waste. You can even do in a baskets or a 50 kg bags. And then we have done the kitchen gardens involving the woman, and these were the procedures followed. I am not going to detail. I'll just show you the success that in biogas, if you add 100 kgs of food waste, 200 kg of food waste, if you add just 30 kgs of cow dung, you get 82% more biogas than what you get from the using 100% cow dung. And soil treated with the biogas slurry when applied to the field, when it showed more bacterial count, then the crop grown in the slurry treated plot showed more minerals, more nutrients. I have a comparative study scientific details. These are the nutrient analysis of the flower compost which I made using a biodung composting technique. Then I have involved a woman in the kitchen garden development, because as a farming they don't want to do the organic farming, but when I involved women for their food security thing, and I gave them a training to do organic kitchen garden, it was very well accepted. So many people adopted the kitchen garden techniques. 1 minute more because I have to come to the recommendation. Okay. So now ultimately after 3 years of intensive work, we have now developed anemia free weather mission, under which there are total 1626 kitchen garden. Out of that, in 170 villages in 7 districts. And women have seen that in kitchen garden organic techniques are successful, and after learning from the kitchen garden they are applying all those techniques in the farm. This is some of the data that from 12% we were able to increase the hemoglobin level of 12% women showed normal anemia in the beginning, and now in the end 80 to 90% women showed normal hemoglobin. So we were able to recover the anemia, and this was the major reason of replication of kitchen garden in the villages. I will not talk about the constraints, I will only go to the recommendations now, and that is propagation of natural friendly techniques. Agriculture should be focused on food and nutrition rather than cash crops. So we should have a standard package of practice, because so many people talk of so many things even in organics. कोई वर्मी कंपोस्ट करेगा, कोई नेचुरल फार्मिंग करेगा, कोई नो टिल करेगा, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा. तो farmers are confused. They say you are contradicting among yourselves, so what should you follow? So at least region wise, crop wise, there should be POPs, standard package of practice. Women farmers should be encouraged to grow more organic foods for their family. Independent market system should be developed to establish direct producer consumer linkages, क्योंकि यदि बिक्री नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी, तो लोग लगाएंगे नहीं. यदि आप अच्छे ऑर्गेनिक फूड के आउटलेट्स खोलते हैं, गुजरात में हमारे पास उदाहरण है कि जहां ऑर्गेनिक फूड के आउटलेट्स खुले वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ा. उसके बाद में सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं है. किसान ऑर्गेनिक करता है तो कौन सर्टिफाई करेगा? इसलिए जो पीजीएस सिस्टम है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो है, जो आसान है, जो 10 किसान मिलकर कर सकते हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए. वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग को प्रमोट करना चाहिए.
और जो शहरों में जो बल्क वेस्ट जनरेट हो रहा है, फ्लावर वेस्ट है, फूड वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करके रिसाइकल करके रूरल एरियाज़ की तरफ जाना चाहिए। और हमने देखा कि स्कूल में बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट करते हैं, दे आर वेरी रिसेप्टिव। और इसलिए हमने रूरल स्कूल्स में जब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस बच्चों को सिखाई तो उन्होंने स्कूल में भी किया और जाके अपने घरों में भी किया। सो दे आर वेरी गुड मैसेंजर्स फॉर अस। सो वी शुड इंक्लूड ऑल दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन द स्कूल सिलेबस। और हमें किसानों ने भी कहा कि अब हमारी तो उम्र निकल गई, अब हमारे बच्चों को सिखाइए। So if we really want to come back to the soil fertility management system, we should include it into the school syllabus. न्यूट्रिशन प्लांटेशन तो अभी बात हुई है, प्लांटेशन को प्रमोट करना चाहिए। और एक मेजर लिमिटेशन है कि हमारे पास अच्छे सीड्स नहीं हैं। वी ओनली हैव हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स और जीएम सीड विच रिस्पॉन्ड गुड टू केमिकल फर्टिलाइजर, दे डोंट रिस्पॉन्ड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड अवर वुमेन हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन कंजर्विंग देयर ओन सीड। अपने बीज बचाने की जो उनकी शक्ति थी, जो ज्ञान था, वो उन्होंने खो दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि वो उनको दोबारा ट्रेन किया जाए। हमारी महिलाओं ने भी अभी ये किया, जिनको हम 5 साल से किचन गार्डन कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैडम आप हमको बीज बनाना सिखा दीजिए, आप देखेंगे कि 100 के 500 किचन गार्डन कैसे हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैंने किचन गार्डन में ये देखी है कि आपको उनके पीछे डंडा लेके पढ़ना नहीं पड़ता है। यदि एक गाँव में 10 महिलाओं ने अच्छा किया, सक्सेसफुल किया, तो 10 से 25, 25 से 50 अपने आप होते। तो उन्होंने भी हमें ये किया कि आप सिर्फ हमारा हेल्थ चेकअप कीजिए और हमें सीड कैसे बनाया जाए वो बताइए। तो वो बताने के बाद में हम अपने आप इसको मास मूवमेंट बना देंगे, क्योंकि ये कोई चीज़ यदि उनके दिल में पड़ जाती है तो उसके लिए उनके पीछे नहीं पड़ना पड़ता। तो ये एक चीज़ ऐसी हमें लगी कि जिसमें हम लोगों की जो बेसिक नीड थी, उनकी जो हेल्थ की प्रॉब्लम थी, एनीमिया की प्रॉब्लम थी, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, उसको जब हमने नरिश किया तो ये चीज़ अपने आप रेप्लिकेट हुई। तो हमें ये भी देखना है, बस एक आखिरी वाक्य कहूँगी कि हमें ये भी देखना है कि किसानों की ज़रूरत क्या है। हम ये देखते हैं हमेशा कि हमारी ज़रूरत क्या है, हम उनके पीछे पड़ते हैं, करो करो करो। हम कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है और तुम्हारे किस वीक पॉइंट को हमें थोड़ा सा कैप्चर करेंगे तो वो चीज़ फैलेगी। तो ये सबसे ज़रूरी है कि किसानों के साथ काम करना है तो उनके माइंडसेट को लेके, उनके दिल को लेके काम कीजिए, अपने दिमाग से न करें। थैंक यू। My questions are related to, I think one thing got missed completely in all the 4 presentations. It's like ownership, land ownership. Yeah? So in the gender discourse, in farming discourse, it is being highlighted time and again that women don't have the ownership. They don't have the right to participate, they don't have the right to take decisions. So I simply got, I didn't get all these things during the presentations. So can we hear a little more on that? We'll move to Thank you. एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। ये डिस्प्यूट चल रहा है मैन वुमन, ऑफ कोर्स इट इज अ फैमिली, फार्मिंग इज अ फैमिली बिजनेस। फैमिली के बिना खेती नहीं हो सकती है जब तक कि घर के सब लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। द मेन थिंग इफ यू गो टू आवर ट्रेडिशनल कल्चर, जो खेती है, खेती का इन्वेंशन महिलाओं ने किया। आपको पता होगा हम सब लोग ट्राइबल कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, हमारे एंसेस्टर्स वर ऑल ट्राइबल। और ट्राइबल का लाइफ पैटर्न क्या था कि जंगल में जाओ, जो मिले चुनो, खाओ और रहो। ठीक है, अभी भी जब बस्तर में रही तो अभी भी जब बेटे की शादी होती है तो उसको एक कुल्हाड़ देके उसकी पत्नी को एक गाय और एक बकरी का बच्चा देके जंगल में छोड़ देते हैं, झोपड़ी बनाओ और रहो। दैट्स ओनली द एसेट दे हैव टू लिव। लेकिन जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी और वो ज़्यादा चल नहीं पाती थी, दूर नहीं जा पाती थी, तब वो कैसे खाएंगी, तब वो कैसे सर्वाइव करेगी। पुरुष लोग तो अपना जानवर मार के हंटिंग करके खाते थे। तो उनमें से कुछ महिलाओं ने कुछ दाने, जिसको हम आज गेहूँ चावल सब कहते हैं, उसको इकट्ठा करके अपने घर के आंगन में, अपने बाड़ी में फेंक दिया और जो उसमें से निकला वो खाना शुरू किया। और इस तरह से धीरे धीरे खेती इवॉल्व हुई। तो खेती ये पहले से ही, शुरुआत से ही एक परिवार के फूड और न्यूट्रिशन की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए बनी है।
जब जंगल कम बचे, फूड न्यूट्रिशन जाना लगा, तो उसके लिए फिर लोगों को खेती की जरूरत पड़ी। तो पहले जो हमने कहा मूविंग कल्टीवेशन हुआ कि भाई एक प्रोडक्टिविटी खत्म हुई तो कहीं और जाकर प्रोडक्टिविटी क्या था। इस तरह से खेती जो है, इसका खेती का संबंध महिलाओं के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि महिलाओं को अपना ही पोषण नहीं करना है, तो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी पोषण करना होता है। तो इसलिए खेती का महिला से बहुत नजदीक का रिश्ता है। जब फूड क्रॉप्स थे तब महिलाओं का लीडिंग रोल था। जब से कैश क्रॉप आई है, जब से हम सोयाबीन, कॉटन, गन्ना इसकी तरफ जाने लगे हैं, तब से वो कैश का जो होल्डिंग था, वो प्रॉपर्टी जरा मेल्स के साथ में चली गई, और इसलिए ये डिवीजन हो गया कि महिलाओं का रोल क्या है और पुरुषों का रोल क्या है। बेसिकली ये फैमिली का ही काम है, वो दोनों मिला जुला ही है। और उसके बाद में मुझे बाकी स्टेट्स का पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में देखती हूँ कि महाराष्ट्र में महिलाओं का शुरू से ही पुरुष के साथ बराबरी का रोल है, और कभी कभी लीडिंग और डिसीजन मेकिंग का भी रोल है। तो महिला कहती है कि यहाँ पर कापूस लगाना है, यहाँ पर सोयाबीन लगाना है, यहाँ पर सब्जियां लगानी है, अनाज लगाना है। और मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों महिलाओं तक गई, क्योंकि हमने जब एग्रो डिस्ट्रिक्ट स्कूल लिया था, तब हमने पुरुषों को बहुत ट्रेनिंग दिया, और पुरुषों ने ये कहा कि आप उनको कितना भी सिखाएं, जब तक आप उनके हमारे घर की महिलाओं को नहीं सिखाते, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। And then we had to turn to train women in organic kitchen garden. तो यहाँ बराबरी का बात है, यहाँ पर कोई आगे कोई पीछे ऐसी बात नहीं है। और जब हमने महिलाओं को कहा कि आपको थकान लगती है, आपको एनीमिया है, आपके बच्चे को माल न्यूट्रिशन है, आप ऑर्गेनिक सब्जी लगाइए, तो वो चीज़ आगे बढ़ी। तो यहाँ दोनों का बराबर रोल है। पर हाँ, ये बात जरूरी है कि एक हमारे लिए बहुत चिंता की विषय है। वो विषय ऐसा है कि फार्मर फैमिली माइग्रेट हो रही है, और वो बेसिकली खेती के लिए तो हो रही है, वो तो एक कारण है, पर वो एजुकेशन के लिए हो रही है। हमने जिन गांवों में हमने काम करना शुरू किया, हमने खुद देखा कि आज से 3-4 साल पहले जहां पति, पत्नी, उसकी माँ, उसके घर के सब बच्चे, सब लोग मिलकर के खेती करते थे, वहां देखा कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, प्राइमरी से ऊपर चला गया, मिडिल स्कूल में चला गया, तो उसमें से 2 लोगों को माइग्रेट करना पड़ा शहर में बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो ये भी एक कंसर्न है। हम सिर्फ ये भी कंसर्न, यही कंसर्न न करें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे प्रमोट करें, सॉइल फर्टिलिटी प्रमोट कैसे करें। हमारा ये भी कंसर्न होना चाहिए कि जो बेसिक लाइफ की फैसिलिटीज हैं, वो हम रूरल एरियाज में कैसे प्रोवाइड करें, ताकि माइग्रेशन रुके, और हमारे जो बच्चे हैं, जो फैमिली फार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन बच्चों को माँ बाप हमेशा कहते हैं भैया मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तू ये काम में मत पढ़, तू शहर में पढ़, अच्छा घर ले, और बुढ़ापे में हम आराम करने के लिए आएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड। तो ऐसे जो त्यागी जी ने कहा, ऐसे उदाहरण बहुत कम है जहां पर बच्चे कहते हैं कि नहीं, शहर की नौकरी से अच्छा गांव का जीवन है। तो हम क्या गांव के जीवन को इतना अच्छा बना सकते हैं कि शहर से जो बच्चा पढ़ के गया है वो गांव में वापस आए। तो ये भी एक इशू है कि जब सब पूरा होलिस्टिक वे में हम जब डील करेंगे, तभी हम सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट या रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। पर मुझे लगता नहीं है कि ये जो इट्स नॉट अ मेजर इशू ऑफ मेल एंड फीमेल, इट इज अ इशू ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ होल ऑफ द फैमिली। पर महाराष्ट्र में ये है कि महिला कन्विंस हो गई तो परिवार कन्विंस हो जाता है। थैंक यू। ये बात महाराष्ट्र में है। I think most of the questions have been answered.